She helps students to self-regulate and faculty to show a unique curriculum of emotional regulation in school. She is also the in charge of homeschooling and open schooling at Sunrise Learning. And very importantly, she is a special parent. A parent of 15-year-old handsome boy, Saksham, who is a boy on the autism spectrum, now studying in pre-vocational program and doing grade 10th at Sunrise Learning. And our second trainer is our Dr. Sonali Kataria ma'am. Welcome Sonali ma'am. She is the founder head of this very special school, Sunrise. She is a medical doctor, autism specialist, fellow in pediatrics, ex-AIM consultant, and a member of advisory board of many schools and Indian Medical Association. Very passionate about empowering parents of differently able children and creating platforms of opportunity and inclusion of them anywhere and everywhere. So welcome Sonali ma'am. Today they are here to take us through the homeschooling program, what is mean, how it can help parents who want homeschool for their child for any reason. So let's start with Vandana ma'am. She has a first-hand experience of her homeschooling journey with Saksham. And I would like to request all the participants to please stay on mute. If you have any sort of queries, you can note it down and we can have a discussion after the session. So over to you, Vandana ma'am, for this very beautiful session. Thank you. Thank you, Diksha ma'am. Thank you for introducing and इतनी सारी बड़ी introduction देने के लिए बड़ा वाला thank you. So hello everyone, my name is Vandana and I जैसे दीक्षा मैम ने बताया I'm an ICT educator at Sunrise Learning. तो आज जो webinar हम करने वाले हैं, the webinar we are going to do today is about homeschooling and open schooling. This topic, this homeschooling concept, this homeschooling program is very, very close to my heart because what I am today or where we stand today, where me and Saksham stand today is because of this homeschooling. तो ये होमस्कूलिंग का जो प्रोग्राम है, ये होमस्कूलिंग का जो वर्ड है होम स्कूल, ये मेरे दिल के इतना करीब है कि आज हम जो कुछ भी हैं. I request the host to please mute the participants. Keep muting them. The host, please. Thank you. तो आज जो हम हैं, जहाँ पर हम हैं, मैंने कभी जब मैंने होम स्कूलिंग की जर्नी स्टार्ट नहीं की थी तो मैंने कभी नहीं, सपने में भी नहीं मेरे आया था कि हम कभी 10th ग्रेड के एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाएंगे, कभी हम इतनी इजीली, इतनी आराम से, इतनी एक्सेप्टिंग वे में हम हर जगह घूमने जाएंगे, हर चीज को एंजॉय करेंगे, हम वाई मी से बाहर कभी निकल पाएंगे. ये सब जो है ये मेरी लाइफ में होम स्कूलिंग प्रोग्राम से आया. तो इससे पहले कि मैं आपको होम स्कूलिंग के बारे में एज अ प्रोफेशनल और एज अ टीचर और एज अ प्रोग्राम इंचार्ज ऑफ होम स्कूलिंग बताऊं, मैं आपसे अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करूंगी. तो आप में से कुछ लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा, जिन्होंने जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो रिपीट करेंगे उनके लिए. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब सक्षम हमारी लाइफ में आया 2008 में. he was a very happy child and 20 months का था जब हमें ऐसा लगा कि कुछ डिफरेंट है. डायग्नोज हुआ और उसके बाद स्टार्ट हुआ थेरेपीज एंड थेरेपीज. वी वर जस्ट रनिंग अराउंड. हम सुबह से शाम तक ट्रेवल करते थे, एक थेरेपी सेंटर से दूसरे थेरेपी सेंटर जाते थे. कब सुबह होती थी, कब रात होती थी, कितना किलोमीटर्स हम ट्रेवल करते थे, हमें मतलब कब ये सोचने का भी समय नहीं मिलता था.
ऐसे करते करते 2 साल से हमने स्टार्ट किया, 6 इयर्स हो गए। बीच में स्कूल गया, छोटे स्कूल सेटअप था जिसमें 5 बच्चे थे और वहां पर वो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए। इसके दौरान भी जब वो स्कूल जा रहे थे, स्कूल के पहले, स्कूल के बाद थेरेपीज, कभी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, यही चलता था और मुझे नहीं पता था कि उसके साथ काम कैसे करना है। जब 6 साल हुए तो हमने ट्राई किया मेन स्ट्रीम में मेरे बच्चे के चैलेंजेस बहुत थे, वो एडजस्ट नहीं कर पाया। हम शायद रेडी नहीं थे, शायद मुझे नहीं आया उस टाइम पर कि मुझे इसके साथ काम करके इसे रेडी करना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो रह गए गैप्स, हम नहीं कर पाए मेन स्ट्रीम। अब जब हमने उसे मेन स्ट्रीम से निकाला तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, आगे क्या करें। अब तो ना हम स्कूल जा रहे हैं, जहाँ हम थेरेपी के लिए जाते थे वहां तो हम बहुत हैप्पी करके ना बाय बाय कर रहे थे, अरे हम तो मेन स्ट्रीम जा रहे हैं, अब क्या। और बीच में ये बात भी दिल में लगती थी कि मेरी एजुकेशन, मुझे लगता था कि मैं कम से कम इतनी कैपेबल तो हूँ कि मैं अपने बच्चे को पढ़ना लिखना सिखा सकती हूँ। तो मेरे अंदर ये बार बार विचार आते थे, बार बार मुझे थॉट्स आते थे कि ऐसी क्या कमी है कि मैं अपने बच्चे के साथ काम नहीं कर पा रही हूँ। बाकी सब लोग तो काम कर लेते हैं, वो स्पेशल एजुकेटर के पास जाता है, वहां पर वो बैठ जाता है, काम कर लेता है, वो ओटी के पास जाता है, वहां पर भी काम हो जाता है, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता, मुझे नहीं आता, मेरे से नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? तो उस टाइम मैं जॉब करती थी, आई एम बाय एजुकेशन एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन आईटी प्रोफेशनल, आई वाज एन आईटी प्रोफेशनल एट दैट टाइम एंड आई वाज डूइंग फुल टाइम जॉब। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मेरा बच्चा, ये जो ट्रेवल बहुत हमें बॉदर करता था, सारा दिन ट्रेवल, अराउंड 7 o'clock हम स्टार्ट करते थे, थेरेपी सेंटर स्टार्ट हुए, थेरेपी स्टार्ट होती थी 4-5 घंटे एक जगह, फिर 2 घंटे एक जगह, ऐसे करते करते शाम के 7 या 8 बज जाते थे। ये चीज मुझे बहुत बहुत कचोटती थी बार बार कि क्या हम सारे दिन रोड पर ही घूमते रहेंगे, क्या मुझे कभी उसको बिठाना नहीं आएगा, क्या हम कभी सेटल नहीं होंगे। और इतने सारे घूमने फिरने, जगह जगह जाने, और मॉनेटरी वाइज भी इट वाज टू मच फॉर अस, दो बोथ ऑफ अस वर अर्निंग। तो दिल ने बोला कि तुम एक बार ट्राई करो। तब मुझे होम स्कूलिंग वर्ड नहीं आता था, तब मुझे नहीं पता था होम स्कूलिंग क्या होता है। मेन स्ट्रीम में से जब निकाला तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग उस दौर से गुजरे हैं, जबकि हमें ये था कि ना तो मेरा मतलब मेरे बच्चे को तो मुझे स्कूल, इस उम्र में जब सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। मेरा बच्चा एकेडमिक्स तो करता है, लेकिन मैं उसको एकेडमिक्स में हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को नहीं आ रहा। तो पहले तो मैंने पहले थोड़ा अपने आप से सीखा, जहां जहां वो जाता था वहां पर थेरेपी में साथ में बैठना शुरू किया, उनसे सीखना शुरू किया। कुछ मेंटोर मुझे अच्छे मिल गए जिनसे मैंने सीखा, और जब मैंने थोड़ा सा सीख लिया तो मुझे लगा कि एक बार मैं घर पर इसके साथ ट्राई करती हूँ होम स्कूलिंग करने, जिससे कि हम होम स्कूल बोलते हैं। होम स्कूलिंग करने के लिए अब ये था कि होम स्कूलिंग में कराना क्या है, ये कैसे पता चलेगा। तो इतना आइडिया तो हो गया था जगह जगह घूम के कि एक चीज पर काम करने से बात नहीं बनती, आपको हर एरिया पे काम करना पड़ेगा। जब आप होम स्कूलिंग कर रहे हो, हर एरिया पे काम करना होगा, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पर काम करना होगा, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो मैं लकी थी, मुझे एक और फ्रेंड मिल गई और हम दोनों ने मिलकर होम स्कूलिंग स्टार्ट किया। वो आती थी हर रोज हमारे घर, और हम दोनों अपने दोनों बच्चों को होम स्कूल करते थे, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। ये सिलसिला 4 साल तक चला। इन 4 साल में जहां हम थे और जहां हम पहुंचे, वो अनबिलीवेबल चेंजेस आए, और सबसे बड़ा चेंज बच्चे से ज्यादा हम दोनों माओ में आया।
हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं अपने बच्चे के साथ काम कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल जो ग्रोथ है उसकी इंचार्ज बन सकती हूँ। मेरा बच्चा स्पेशल हुआ तो क्या हुआ, मेरा बच्चा डिफरेंट हुआ तो क्या हुआ, है तो वो मेरा ही बच्चा, और मैं जैसे चाहूं उस तरह से उसे अपने ढाल सकती हूँ, उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमें पीछे पीछे की ओर ले जाए, ऐसा नहीं। हम अगर ठान लेंगे तो हम हर चीज कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आ गया जब, तो उस टाइम तक हम जब हमने स्टार्ट किया था होम स्कूलिंग 2015 की बात है, तब हम बिल्कुल प्री नर्सरी, अगर एकेडमिक की बात की जाए तो प्री नर्सरी के लेवल पर थे। जब हम 4 साल के बाद हमने देखा तो हम बी लेवल NIS OB से कर चुके थे। OT के बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत हाइपर एक्टिविटी थी, बहुत चीखना चिल्लाना था, बहुत सारे सेंसरी इश्यूज थे जो कि घर पर अपने कंट्रोल करने से हो गए, काम हो गया उन पर। और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मेरे बेटे में आए, और जो हमारे साथ आते थे मेरी फ्रेंड, उनके बेटे में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। तो इस होम स्कूलिंग जर्नी ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया, दुनिया में मैं अपने बच्चे के साथ कहीं भी चली जाऊं, मुझे थोड़ी गाइडेंस मिलती रहेगी, थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर मुझे खुद पर भरोसा होगा, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ये आ गया कि दुनिया के किसी कोने में भी हम बैठे होंगे, हमारी ग्रोथ नहीं रुकेगी, हमारी लर्निंग नहीं रुकेगी, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, और हम जितना हमारी कैपेसिटी है उतना करके दिखाएंगे। ये एक कॉन्फिडेंस आया। तो होम स्कूलिंग बड़ा सा वर्ड है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, करना क्या है, कैसे करना है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये तो एक छोटी सी जर्नी थी मेरी और मेरी फ्रेंड नीति की, जिसमें हमने 4 साल होम स्कूलिंग किया, और हमने कैसे किया वो जब मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन करूंगी तो हम धीरे धीरे उसमें भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि होम स्कूलिंग क्या होता है, कैसे करना होता है, कितने सपोर्ट की हमें जरूरत होती है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आते हैं, उन्हें कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो अभी इतना ही अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी और हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो एक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। My screen is visible. Getting started with homeschooling. तो अभी जो मैं प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ वो आपको एज एन एक्सपीरियंस्ड होम स्कूलिंग पेरेंट, एज एन इन चार्ज ऑफ होम स्कूलिंग प्रोग्राम, एज ए टीचर, आपको एज ए प्रोफेशनल आपके साथ ये शेयर करूंगी कुछ पॉइंट्स जो कि होम स्कूलिंग के लिए जरूरी होते हैं। तो होम स्कूलिंग होता क्या है? होम स्कूलिंग इज फ्रीडम ऑफ एजुकेटिंग योर चाइल्ड in a way that works best with family schedule and the value that resonate with your heart, and it is priceless. तो होम स्कूलिंग एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी चीज है जो कि आपके बच्चे को आपके हिसाब से, आपकी फैमिली वैल्यूज के हिसाब से, आपकी फैमिली कंडीशंस के हिसाब से डेवलपमेंट में, लर्निंग में हेल्प करता है, और जो आप अपने दिल से करते हो। तो होम स्कूलिंग का सबसे जो पहला सबसे पहली जो सीख है, सबसे पहली जो लर्निंग हमें हुई कि अगर आप कोई भी काम दिल से करते हो तो वो एक प्राइसलेस काम होता है और उसमें रिजल्ट्स जरूर आते हैं। ये हमें तब फील हुआ जब हमने अपने बच्चों को होम स्कूल किया, दिल से, जो भी काम किया दिल से किया। तो it is a program which resonate with your heart and it is a priceless thing.
हम बात करेंगे, ये मैंने आपसे बता ही दिया हम क्या बात करने वाले हैं। अब होम स्कूलिंग होता क्या है? हमें से बहुत सारे लोगों को, मोस्ट ऑफ मेनी पीपल विल बी हैविंग दिस कंफ्यूजन कि व्हाट इज होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग इज एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन एट होम ईदर बाय द पेरेंट्स और द ट्यूटर्स। जो वाइड अगर हम डेफिनेशन देखते हैं होम स्कूलिंग की, तो होम स्कूलिंग का मतलब होता है आप अपने बच्चे को घर पर या फिर किसी ट्यूटर की हेल्प से पढ़ा रहे हो घर पर, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल स्कूलिंग अप्रोच। बहुत सारे लोग होम स्कूल करते हैं एंड इट इज एन ऑल्टरनेटिव, ये जो है एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है आपके बच्चे को एजुकेट करने के लिए, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच से, ट्रेडिशनल स्कूलिंग अप्रोच से डिफरेंट है। It is a conscious decision made by parents to teach their children at home rather than in formal school setting. ये एक डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन होता है जो कि पेरेंट्स लेते हैं अपने बच्चे के लिए कि हाँ, मुझे अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू गो टू स्कूल एंड आई विल डू अ डिफरेंट वे ऑफ एजुकेटिंग माय चाइल्ड एंड इट इज डिफरेंट देन द फॉर्मल स्कूलिंग. इट इज कस्टमाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स नीड. जो होम स्कूलिंग प्रोग्राम होता है ये कस्टमाइज्ड, मतलब आपके बच्चे के हिसाब से आप उसके टीचिंग और लर्निंग के हिसाब से अपने प्रोग्राम को, तो कस्टमाइज्ड वर्जन होता है लर्निंग का, टीचिंग का, आपके बच्चे की नीड के हिसाब से. व्हाई डू पेरेंट्स होम स्कूल? अब होम स्कूलिंग हो गया कि आप अपने बच्चे को घर पर बैठकर घर पर करा रहे हो काम, अपने आप या किसी की हेल्प से. ठीक है, तो क्यों, व्हाई डू पेरेंट्स होम स्कूल? पेरेंट्स होम स्कूल करते क्यों हैं? बहुत सारे रीजन होते हैं होम स्कूल करने के. किड्स कैन, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है म्यूजिक में, डांस में, आर्ट में या किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, तो वो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करे और उसकी जो इनर इंटरेस्ट है और स्ट्रेंथ है उन पर ज्यादा फोकस करे. तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ओके, आई विल होम स्कूल माई चाइल्ड. तो कुछ होम स्कूलिंग का ये रीजन होता है. some children are on medical conditions. कुछ बच्चे होते हैं जो मेडिकल कंडीशन के कारण स्कूल नहीं जा सकते, फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं जा सकते, उनको बार बार मेडिसिन की जरूरत होती है या उनकी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो कि स्कूल एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता. तो पेरेंट्स सोचते हैं कि वाई टू, मेरे बच्चा मेडिकल कंडीशन के कारण क्यों स्कूलिंग से रहे, तो भी वो होम स्कूल का डिसीजन लेते हैं. नेचर ऑफ जॉब, कभी कभी पेरेंट्स की जॉब ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स होते हैं और ऐसी रिमोट एरियाज में ट्रांसफर होते हैं जहां पर आपके बच्चे के हिसाब से आपको स्कूल नहीं मिल पाता, वो लोग भी होम स्कूलिंग करते हैं. और अब आते हैं हम स्पेशल नीड पेरेंट्स, जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स होते हैं. हमारे बच्चे की बहुत सारी स्पेशल नीड्स होती हैं, उसको थेरेपीज की जरूरत होती है, उसको उसके सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना मुश्किल होता है, स्पीच नॉन वर्बल होते हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती स्कूल. बहुत सारे रीजंस होते हैं स्पेशल नीड बच्चों को होम स्कूल करने के. और कभी कभी एक पर्सनल चॉइस भी होती है कि नहीं, मुझे ट्रेडिशनल होम स्कूल में जाना ही नहीं है, आई वांट टू डू माय ओन वे. तो ये दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस जिसके कारण पेरेंट्स जो है वो होम स्कूल करते हैं. होम स्कूलिंग स्पेशल नीड चिल्ड्रन, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, फॉर्मल एजुकेशन लें, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है उस फॉर्मल सेटिंग में एडजस्ट करना. हमारे बच्चे की डाइवर्स नीड्स होती हैं, उन डाइवर्स नीड्स के चलते फॉर्मल स्कूलिंग हमारे बच्चों के लिए कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. तो व्हाई शुड वी होम स्कूल स्पेशल नीड चिल्ड्रन? हम में से कुछ बच्चे होंगे, हमारे बच्चों में से जिनकी मेडिकल कंडीशंस ऐसी है जिसके कारण वो स्कूल फॉर्मल सेटिंग में एडजस्ट नहीं कर सकते. उनकी डाइट इस तरह की है या दवाइयां इस तरह की है या फिजिकल लिमिटेशंस हैं जिसके कारण उन्हें स्कूल में एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है. सो होम स्कूलिंग का एक रीजन हो सकता है मेडिकल कंडीशन. समटाइम्स बिहेवियर, सो कॉल्ड बिहेवियर्स
बिहेवियर्स आर मेनली कम्युनिकेशन। तो हमारे बच्चों के पास एक कम्युनिकेशन वाला जो स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन जो होता है, हमारे बच्चे लैक करते हैं वहां पर। और कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण बहुत सारे कई बार बिहेवियर्स आ जाते हैं। तो some children find it very difficult to go for formal schooling because of their communication challenges or behaviors, and that's why some of the special need parents go for homeschooling. Lack of resources and support. कुछ पेरेंट्स हम में से ऐसे होंगे, आप में से कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर थेरेपी सेंटर्स नहीं है, जहां पर उतनी अच्छी सपोर्ट मेन स्ट्रीम में या फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं मिल पाता जितना मेरे बच्चे को चाहिए। सो लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर होम स्कूलिंग। नॉट प्रोग्रेसिंग इन स्कूल और अंडर एस्टिमेटेड। देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन स्पेशल नीड, स्पेशली इन स्पेशल नीड, जो कि करते हैं, जिनको आता बहुत कुछ है, बट वही एक कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए या बिहेवियर कह लीजिए, उसके कारण जितना उनको आता है उतना उससे वो लोग उसको अंडर एस्टिमेटेड रह जाते हैं स्कूल्स में। तो उसके कारण भी कई लोग ये डिसाइड करते हैं कि मेरा बच्चा तो 2nd 3rd ग्रेड का काम कर लेता है, लेकिन स्कूल वाले तो अभी इसको नर्सरी से आगे ले जाने के लिए ही रेडी नहीं है। सो they decide ki we will go for homeschooling, and there are financial issues, therapies and everything. It is very expensive, na? And going to a formal school with special need is too much. Sometimes it is too much for few families. So due to financial issues, some families decide that we will homeschool our special need children. So these are the reasons why people with children with special need are homeschooled. अब ठीक है, हमारी ये सारी हम रीजंस हैं जिसके कारण हमें अपने बच्चे को होम स्कूल करना पड़ता है, लेकिन होम स्कूल करने से फायदा क्या होगा? व्हाट आर द बेनिफिट्स वी गेट व्हेन वी होम स्कूल? अब होम स्कूलिंग के फायदे क्या है? इट इज फ्लेक्सिबल, इट कैन गो विद द चाइल्ड्स लाइक्स एंड लर्निंग स्पीड। जो होम स्कूलिंग है, इट इज फ्लेक्सिबल। आप अपने हिसाब से अपना रूटीन बना सकते हो, अपना शेड्यूल बना सकते हो, आप अपने हिसाब से उसमें थेरेपीज डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ होम स्कूलिंग। इट हेल्प्स रीच न्यू गोल्स इन अ लविंग एनवायरनमेंट। स्पेशली हमारे बच्चों के साथ क्या होता है कि कहीं पर वो एक अच्छा एक्सेप्टेड लविंग एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल पाता और उसके कारण भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बट व्हेन वी होम स्कूल, जब हमारा जो घर है वहां पर जब हम काम करते हैं तो उनको एक लविंग एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट मिलता है, तो इससे उनके जो गोल्स होते हैं वो अचीव करने में बहुत हेल्प हो जाती है। सो इट हेल्प्स टू रीच न्यू गोल्स इन अ लविंग एनवायरनमेंट। Life and personal skills are learned in the place where the child will be using them. अब हमारे बच्चों के साथ मेनली जो चैलेंज होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज और डे टू डे जैसे बेदिंग है, ब्रशिंग है, इन चीजों में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, टॉयलेटिंग है, इसमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं। लेकिन ये चीजें जब एक ऐसे एनवायरनमेंट में सिखाई जाती हैं जहां पर वो मोस्टली होती है, जो उनका एरिया है जहां पर वो होती है, जैसे ब्रशिंग है वो घर में ही करेंगे, और टॉयलेटिंग है वो घर में इजीली हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि दे आर इजी टू टीच व्हेन दे आर डन इन अ प्लेस वेयर चाइल्ड विल बी यूजिंग देम। फाइनेंशियल और ट्रैवल कंस्ट्रेंट कैन बी मैनेज्ड। बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ये चैलेंज आता है कि अभी तो हम एनसीआर में हैं, अभी तो हमें बहुत अच्छी थेरेपीज मिल रही हैं, and suddenly we got transferred to a remote area where there are no therapies, nothing, and now what to do? Either one of the parent has to live in the big city and the other parent has to move, or the child's therapies and overall development जो चल रहा था, जहां पर प्रोग्रेस हो रही थी, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन जब हम होम स्कूल करते हैं तो ये वाले कंस्ट्रेंट्स को हम इजीली मैनेज कर पाते हैं। तो फाइनेंशियल और ट्रैवल कंस्ट्रेंट्स कैन बी मैनेज्ड इजीली। इट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस इन योर चाइल्ड एंड बिल्ड्स द चाइल्ड्स सेल्फ एस्टीम।
कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं सक्षम के साथ काम नहीं करती थी और जब मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया, जो कॉन्फिडेंस लेवल पहले मेरा था और जो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आया उसके साथ काम करने के बाद, that has changed my personality. तो वो होम स्कूलिंग जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है आपका अपने बच्चे के साथ बॉन्ड करने में और आपका अपने बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। तो पहले जब हम जाते थे तो हम बोल देते थे कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, अरे इससे नहीं होगा। But when I am working with my child myself, I am in control of my child's overall development and overall learning, then I know my child's strength and I know he can do it. तो वो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर जो है वो होम स्कूलिंग में बहुत बढ़ जाता है। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं होम स्कूलिंग के। बेनिफिट्स ऑफ पेरेंट लेड अप्रोच। होम स्कूलिंग इज मोस्टली डन बाय द पेरेंट्स। तो क्या पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स लेड अप्रोच होगी तो क्या क्या मिलेगा हमें? अनकंडीशनल लव। I'll accept my child with no conditions. तो पेरेंट का जो अनकंडीशनल लव है वो उस लर्निंग में ऐड हो जाता है। आपकी अवेलेबिलिटी 24/7 है। अगर आपको टॉयलेटिंग आप सिखा रहे हो, आप रात को भी सिखा सकते हो, सुबह भी सिखा सकते हो, किसी भी टाइम सिखा सकते हो। knows the child best, understand from child's perspective, क्योंकि most of the time you are working with your child, you are in control of all the programs that is being done with the child, then you can very well understand your child's perspective. जो मैंने आपको पहले भी बोला कि होम स्कूलिंग करने से जो बॉन्डिंग होती है हमारी वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सो ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उससे क्या होता है कि हम अपने चाइल्ड के पर्सपेक्टिव को जानने लग जाते हैं। इफ वी डू अ पेरेंट लेड अप्रोच, मोर मोटिवेटेड एंड गोल ओरिएंटेड। हम जब अपने आप काम करते हैं तो हम छोटे छोटे गोल्स बनाकर चलते हैं एंड हमारी जो अप्रोच रहेगी वो मोटिवेटेड रहेगी और गोल ओरिएंटेड रहती है। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। जितनी पेशेंस हमारे पेरेंट्स के अंदर होती है ना अपने बच्चों को लेकर, उतनी पेशेंस किसी दूसरे में होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग जिनमें उतनी पेशेंस होती है जितनी पेशेंस हम अपने बच्चे के साथ रखते हैं। तो वो पेरेंट लेड अप्रोच से आपको ये भी फायदा हो जाता है कि आपके बच्चे को जो भी आप काम करा रहे हो, जो भी उसके गोल्स हैं, जो उसकी लर्निंग करा रहे हो, इट इज डन विद मोर पेशेंस एंड मोर कंसिस्टेंसी। थेरेपी हम जाते हैं तो हम वीक में 2 बार जाएंगे या फिर 40 मिनट्स के लिए जाएंगे, ऐसा रहता है ना। लेकिन जब हम खुद से काम करते हैं तो हम वही चीज जो हम वहां थेरेपी सेंटर में सीख कर आए हैं उसको हम 4 बार भी करा सकते हैं। तो हमारी कंसिस्टेंसी भी बढ़ जाती है और हमारी पेशेंस भी बढ़ती है। हाईएस्ट इन्फोर्सर फॉर द चाइल्ड। हमें लगता है कि मेरे बच्चे को चॉकलेट पसंद है, मेरे बच्चे को जेम्स पसंद है, मेरे बच्चे को लाइट वाला टॉय पसंद है। ऐसा नहीं होता। मेरे बच्चे को जो सबसे ज्यादा पसंद होता है वो मेरा टाइम, मेरा साथ और मैं, वो सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो जब हम अपने बच्चे के साथ काम करते हैं, जब हम इंचार्ज बनते हैं अपने बच्चे के प्रोग्राम के, सो द चाइल्ड गेट्स द हाईएस्ट reinforcer. So you are the highest reinforcer of your child, and when you are doing a parent-led approach, then you are giving the highest reinforcer to your child. ये बेनिफिट्स हैं हमारे पेरेंट-लेड अप्रोच में। अभी कुछ डाउट्स होते हैं जब हम होम स्कूलिंग करते हैं, तो कुछ डाउट्स भी होते हैं। हमें भी हुए थे ये डाउट जब हमने होम स्कूलिंग किया था और आपको भी हो रहे होंगे आज, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि हाँ मुझे होम स्कूलिंग करना है, लेकिन मेरे मन में ये चल रहा है होम स्कूलिंग इज ओनली डूइंग एकेडमिक्स। ठीक है, मैं होम स्कूलिंग करने के लिए रेडी हूँ। मेरा बच्चा ना अभी 1st ग्रेड का सिलेबस कर देता है, तो मैं उसको मैथ में ये पढ़ा दूंगा, इंग्लिश में ये पढ़ा दूंगी और साइंस में ये पढ़ा दूंगी। ये मिथ है। Homeschooling is not only about academics, it is more than that, and we will learn about it. It is more than that. If I am homeschooling, I'm not supposed to take external help.
ये भी एक मिथ होती है, ओ मैं तो होम स्कूलिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे किसी थेरेपिस्ट से नहीं पूछना चाहिए कि ये कैसे होता है, मुझे किसी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए, मैं तो होम स्कूलिंग कर रही हूँ उसका मतलब मुझे ही सब कुछ करना है। इट इज अ मिथ. Homeschooling does not mean that you don't need any help or support. होमस्कूलिंग का बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं होता कि आप एक्सटर्नल हेल्प नहीं लोगे। आप प्लान्स ले सकते हो, आप एक्सटर्नल थेरेपीज ले सकते हो, आप किसी को बुलाकर घर में कर सकते हो, लेकिन जो प्रोग्राम के इंचार्ज हो वो आप रहोगे। ठीक है, तो ये मिथ है कि अगर मैं होम स्कूलिंग करूंगा तो मुझे तो किसी की हेल्प ही नहीं लेनी है, मुझे तो खुद ही करना पड़ेगा सब। It is repetitive and boring. Believe me, I have done it for 4 years. It is not at all boring. आपको टोज पे रखती है होम स्कूलिंग। आज ये कर लिया, कल क्या करें, अरे वाह हमने इसने इतना कुछ कर लिया और मुझे इसको ये नया कराना है। तो ये बिल्कुल भी रिपीटेटिव नहीं है और बोरिंग नहीं है। ये एक मिथ है कि अरे रोज एक ही काम करते रहेंगे, रोज एक ही काम करते रहेंगे, बच्चा भी बोर हो जाएगा, मैं भी बोर हो जाऊंगी। लेकिन जब हम उसे प्रॉपरली प्लान करके करेंगे, प्रॉपरली किसी की हेल्प लेकर करेंगे, या फिर हम प्रॉपरली सब कुछ दिमाग में रख के करेंगे, तो ये बिल्कुल भी रिपीटेटिव और बोरिंग नहीं है। It limits learning to home while the outside world is more challenging. अगर हम होम स्कूलिंग करेंगे तो हम तो घर में ही रह जाएंगे, बाहर की दुनिया तो मेरे बच्चे को दिखाई नहीं देगी, बाहर की दुनिया तो बहुत चैलेंजिंग है, वो बाहर की दुनिया में कैसे कोप अप करेगा। तो होम स्कूलिंग, जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया, एक तो होम स्कूलिंग केवल एकेडमिक्स नहीं है, ऐसे ही होम स्कूलिंग केवल घर पर रहना नहीं है। इट इज मोर देन दैट एंड विल टॉक अबाउट इट। इट मेक्स किड्स सोशली ऑकवर्ड, सेम थिंग। अगर बाहर ही नहीं जाएगा तो मेरा बच्चा कैसे सोशल हो पाएगा? ऐसा नहीं है, ये मिथ है कि अगर हम होम स्कूलिंग करते हैं तो हम घर पर ही रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं, और अगर हम होम स्कूलिंग करेंगे हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे, ये भी एक मिथ है। अगर होम स्कूलिंग करेंगे तो हम केवल पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं करने वाले, ये भी एक मिथ है। होम स्कूलिंग इससे बहुत ज्यादा है। होम स्कूलिंग एक होलिस्टिक अप्रोच है, उसमें ये सब कुछ आएगा। Only parents who are qualified teachers can do it. मैं तो टीचर नहीं हूँ, मैंने तो बीएड भी नहीं कर रखी, मैंने तो स्पेशल एजुकेशन का कोई कोर्स भी नहीं कर रखा, मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगी? मैं तो नहीं करा सकती। ये बहुत बड़ा एक लिमिटेशन होता है हर पेरेंट के दिल में कि केवल क्वालिफाइड टीचर ही ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छी तरह से सीखोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे, सीखोगे, किसी के सपोर्ट से करोगे, या फिर आप सिस्टमैटिक प्लान वे में करोगे, तो हर एक माँ, हर एक पापा अपने बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। और बोलते हैं पेरेंट्स आर द बेस्ट एंड फर्स्ट टीचर ऑफ देयर चाइल्ड। तो जब पेरेंट्स फर्स्ट और बेस्ट टीचर हो सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमें नहीं आता, हम सीखेंगे और हम करेंगे। जो नहीं आता वो सीखेंगे और जो करेंगे वो करेंगे, जितना आता है वो तो हम अपने आप ही करेंगे, है ना? तो ये मिथ है, ये मिथ हमें ये सब करने से रोकती है, अपने बच्चे के साथ काम करने से रोक देती है। तो ये मिथ्स को हम अपने दिमाग में से निकाल देंगे। अभी जैसे हमने बात किया कि होम स्कूलिंग जो है एकेडमिक्स नहीं है, होम स्कूलिंग घर पर रहना नहीं है, होम स्कूलिंग तो इससे बहुत ज्यादा है। अब होम स्कूलिंग क्या है? होम स्कूलिंग एक पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच है। होम स्कूलिंग में ये सब आता है, हमें इस सब पर काम करना है। एकेडमिक्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। होम स्कूलिंग में हमें एकेडमिक्स भी करना होगा, हमें अपने बच्चे की सेंसरी नीड्स पर भी ध्यान देना है, हमें उसकी फिजिकल ग्रोथ पर भी ध्यान देना है, उसे लाइफ स्किल्स भी सिखानी है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स पर काम करना है, उसके लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पर काम करना है,
स्किल्स पर काम करना है और एक्स्ट्रा करिकुलर प्ले एंड लेजर इस पर भी काम करना है। तो इट इज अ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि होम स्कूलिंग मतलब कि बस घर में बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे, लेकिन होम स्कूलिंग का मतलब है हम अपने बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पर काम करेंगे। जब वह बच्चा स्कूल जाता है तो क्या वो बच्चा केवल पढ़ाई करता है? नहीं, स्कूल में बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पर काम होता है। स्कूल का मतलब ही वही होता है, स्कूल की डेफिनेशन यही होती है। नॉट ओनली एकेडमिक्स, दे वर्क ऑन देयर फिजिकल growth, they work on their fine motor skills, they work on their behaviors, they work on their social skills, they function होते हैं, इतनी outings होती है स्कूल में, ये सब जो है ये सब पार्ट है ना होलिस्टिक डेवलपमेंट का। इसी तरह से होम स्कूल में भी हमें सारे के सारे एरियाज को ध्यान में रखना होता है। सो होम स्कूलिंग इज नॉट ओनली academics, it is more than academics. These are few of the areas. Academics is just a part of it. अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप दो टर्म यूज करते हो, होम स्कूलिंग और ओपन स्कूलिंग, इनमें क्या डिफरेंस है? होम स्कूलिंग क्या होता है और ओपन स्कूलिंग क्या होता है? होम स्कूलिंग, जैसे कि अभी हमने बताया कि होम स्कूलिंग इज नॉट ओनली एकेडमिक्स, होम स्कूलिंग केवल एकेडमिक्स नहीं है, ये तो एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हमें सारे एरियाज पे काम करना है। और ओपन स्कूलिंग क्या होता है? ओपन स्कूलिंग इज एकेडमिक्स, जहां पर हम बच्चे की एकेडमिक्स की ओर ध्यान देते हैं। तो आपने कुछ टर्म सुनी होगी, OBE, NIOS, ये सब क्या है? ये ओपन स्कूलिंग का पार्ट है जिसमें हम बच्चे के एकेडमिक्स पर काम करते हैं। बच्चा मेरा रेडी है 10th के एग्जाम, 10th के लिए मैं उसे ओपन स्कूलिंग से एग्जाम दिला दूंगी NIS के थ्रू, दैट इज ओपन स्कूलिंग। होम स्कूलिंग, मेरा बच्चा 10th के एग्जाम देगा, मेरा बच्चा स्केटिंग बहुत अच्छा करता है, वो स्केटिंग अच्छे से सीखेगा, मुझे अपने बच्चे 15 साल का मेरा बेटा हो गया है, मुझे उसे कुकिंग भी सिखानी है, मेरे बच्चे को मूवी देखना नहीं आता, मुझे उसे मूवी हॉल में ले जाकर मूवी में बैठना सिखाना है, मुझे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है, मुझे उसे गाना सिखाना है। मतलब कि होम स्कूलिंग में तो हम सारे एरियाज को फोकस कर रहे हैं, ओपन स्कूलिंग में मुझे केवल 10th की तैयारी करानी है, मुझे केवल एकेडमिक्स में ही ध्यान देना है, दैट इज ओपन स्कूलिंग। तो जब हम ओपन स्कूलिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे ये NIS बोर्ड की जब बात होती है, OBE लेवल 1 ABC की बात होती है, दैट इज ओपन स्कूलिंग एंड इट इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ होम स्कूलिंग। एक छोटा सा पार्ट है होम स्कूलिंग का ओपन स्कूलिंग। होम स्कूलिंग बहुत वास्ट है, ओपन स्कूलिंग उसमें एक छोटी सी एरिया है जिस पर हमें काम करना होता है। तो आई होप जिन्हें कंफ्यूजन होगा होम स्कूलिंग ओपन स्कूलिंग के बीच में, उनका ये कंफ्यूजन आज जरूर दूर हो जाएगा। तो होम स्कूलिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं उसकी बात करेंगे। होम स्कूलिंग में चैलेंज सबसे बड़ा ये आता है because it is a parent led approach. आप as a parent is taking control of everything of your child, overall development of your child. So you will be taking care of speech therapy, you will be taking care of OT, you will be taking care of academics, you will be taking care of sports. आप उसके इंचार्ज रहोगे, तो इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है जो कि हम कभी हमारे लिए फिजिकली और इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है किसी के लिए। तो उसके लिए हमें ये बड़ा चैलेंज आ सकता है, जिसके लिए हम कैसे उस चैलेंज को ओवरकम करेंगे उसकी भी बात करेंगे। कुछ बच्चे किड्स आर ग्रोइंग अप एंड कमिंग अप विद न्यू बिहेवियर्स एंड सेंसरी नीड्स। होम स्कूलिंग में एक बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि अच्छा मैंने तो ये वाले गोल कर लिया अचीव, मेरे बच्चे के बिहेवियर्स आ रहे थे, मैंने उन पे काम किया, ये वाला बिहेवियर चला गया, माय चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, अब नया चैलेंज आ गया, अब क्या करूं? ऐसे से चैलेंज आते हैं होम स्कूलिंग में। एक्सटर्नल फैक्टर्स, घर में कुछ हो गया, मैं उसे बिठा ही नहीं पाई, फैमिली में कुछ इश्यू आ गया, हम काम ही नहीं कर पाए, मैं बहुत
बीमार हो गई या फिर मेरा मुझे मन ही नहीं किया काम करने का, इस तरह के इश्यूज आते हैं होम स्कूलिंग में। और लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, अकेले काम करना, अकेले सब कुछ देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, सपोर्ट सिस्टम की कभी कभी कमी हो जाती है। For some kids initially it may be difficult to transition from schooling to school to home school. मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था पहले और अचानक से मैंने उसे घर पे काम कराना शुरू कर दिया। It is a big challenge for me, for my child, and it is creating a lot of problem. So these kind of challenges we face in homeschooling. How can we overcome? Overcome करने के लिए सबसे पहले when you decide that you are going to homeschool, you need to get yourself ready. बच्चे से पहले आपको खुद को तैयार करना है। Yes, I can do it. I am ready for it physically, emotionally, and for that आपको जब आप अपने बच्चे के लिए कुछ प्लान बनाओगे, आपको अपने लिए भी प्लान बनाना होगा। एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, तो मेरा मी टाइम जो है वो भी अगर रहेगा तो मेरे लिए ड्रेनिंग नहीं होगा। सो यू हैव टू रियली पुट इन ऑल टाइम, आपको अपने बारे में सोचकर भी चलना होगा। किड्स आर ग्रोइंग अप एंड कमिंग विद, ये दोबारा से वही स्लाइड आ गई। अब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके न्यू चैलेंजेस, न्यू बिहेवियर्स आ रहे हैं, उनको हैंडल करना आपको सीखना होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि होम स्कूलिंग इज नॉट, ऐसा नहीं है, ये मिथ है कि हम किसी की हेल्प नहीं ले सकते। अगर आपके पास चैलेंज आ रहे हैं, आपके पास नए इश्यूज आ रहे हैं, आप अपने थेरेपिस्ट से पूछिए, आप एक टीम में रहिए, आप एक सपोर्ट बनाकर रखिए जहां पर आप कांटेक्ट कर सकें और पूछ सके कि अब ये बिहेवियर आ गया, अब मैं क्या करूं। आपको वो सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे तो इजी हो जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स और चैलेंजेस के लिए आपको अपनी फैमिली में भी एक टीम चाहिए होगी। आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी इन-लॉज के साथ एक ऐसी टीम बनाइए जिससे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स और जो चैलेंजेस आते हैं उनका कम से कम इम्पैक्ट पड़े हमारे ऊपर। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है होम स्कूलिंग में। ट्रांजिशन, हम अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और आप उसे होम स्कूल करने की सोच रहे हैं तो आप उसे पहले से ही रेडी करना शुरू करोगे। आपको कैलेंडर पर मार्क करना होगा, आपको सोशल स्टोरी करनी होगी, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम शुरू से ही 1 घंटे से शुरू करना होगा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, तो ग्रेजुअली आपको इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, build a strong support system, getting ready for homeschool। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करनी है कि ओके, आई एम प्लानिंग टू डू होम स्कूल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट होम स्कूल, आपकी हेल्प की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। अगर आपका एक और भी बच्चा है, उस बच्चे के उस टाइम पर क्या रहेगा जब आप होम स्कूल कर रहे हो, वो आपको प्लान करना होगा, उसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। आपको अपने आप सीखना होगा। अच्छा ठीक है, मैं अपने आप तो काम कर लूंगी, लेकिन मुझे आता नहीं ना, तो मुझे कहीं से सीखना पड़ेगा। सो यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ, डू एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, लर्न फ्रॉम, आप अपने बहुत सारे फेसबुक और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स, ऐसे पेजेस हैं जहां पर बहुत प्राइसलेस इंफॉर्मेशन होती है, हाउ टू डील विद योर चाइल्ड। Go through those, keep reading, keep educating yourself, keep learning, empower yourself, plan your goals। आप छोटे छोटे गोल्स बनाकर चलोगे, प्लानिंग करके चलोगे, स्ट्रक्चर करके चलोगे, it will be really easy for you। Make a list of areas where you need external or professional support। ठीक है, मैथ्स तो मैं इसको अपना एकेडमिक्स वाला पार्ट में इसके साथ खुद से कर सकती हूँ, लेकिन मुझे OT, occupational therapy वाला पार्ट नहीं आता, so I need a professional support here। Who will be that person? How that person will help me? That has to be built। Similarly for speech or any other area where you need support, you need professional help, make a list of those areas, plan your time। कितने बजे से कितने बजे तक हम काम करने वाले हैं, उसको प्लान करेंगे।
प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा कि कल से तो मैं होम स्कूल करने वाली हूँ, 10 बजे से 5 बजे तक बोला था, वरना मैम ने 10 से 5 किया था, हम भी 10 से 5 बैठेंगे। नहीं, पहले मुझे प्लानिंग करनी होगी। हम 10 से 5 एकदम से नहीं बैठे थे, हमने टाइम टेबल बनाया, हमने शेड्यूल बनाया, हमने आपस में एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया। हमने ये डिसाइड किया, ओके सुबह के टाइम बहुत सारा काम होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, खाना बनाना होता है, नाश्ता भी बनाना होता है। ये सपोर्ट सिस्टम पहले बनाना जरूरी है, क्योंकि मुझे 10 से 5 काम करना है। तो सुबह 10 बजे तक मेरा सारा काम खत्म कैसे होगा? उसके लिए मुझे शायद एक मेड की जरूरत पड़ेगी, या फिर मुझे अपनी इन-लॉज के हेल्प की जरूरत पड़ेगी, या हस्बैंड को बोलना होगा कि ये वाला काम जब मैं होम स्कूल करूंगी तो आप करोगे। वो सपोर्ट सिस्टम बनाया। फिर 10 से 5 हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो टाइम टेबल बनाना जरूरी है। उस टाइम पर अगर मेरे घर में दूसरा छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, वो क्या करेगा, उसका टाइम टेबल बनाना जरूरी है। तो आपकी जो प्रॉपर प्लानिंग है वो बहुत जरूरी है। प्लान योर टाइम, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे को 10 से 5 नहीं करना, मेरे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है, मैं 10 से 12 ही करूं, लेकिन 10 से 12 मेरा बहुत प्रोडक्टिव टाइम हो। उस 10 से 12 के पहले और बाद में मैं बाकी सारे काम प्लान कर लूंगी, लेकिन 10 से 12 में मेरा यही वाला टाइम टेबल है जिसको हम करेंगे। आपको अपने डेज, अपने वीक्स और अपने मंथ्स को प्लान करना है, जिसके बारे में हम कभी और बात जरूर करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मेक द फिजिकल अरेंजमेंट, जैसे मैंने बताया कि मेड की हेल्प की जरूरत है, कोई भी फिजिकल अरेंजमेंट करनी है, कोई भी आपको और किसी चीज इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो आप किसी फ्रेंड से टच में रहोगे कि अच्छा मैं तो होम स्कूल करने वाली हूँ, हो सकता है बीच बीच में मैं कभी थक जाया करूँ, तो मैं ना तुम्हें तुम्हारे घर आ जाया करूंगी या तुम्हें कॉल किया करूंगी, तुम जरूर मेरे साथ रहना। फिजिकली और मेंटली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, अपने आप को फिट रखना जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम ये सोचकर करेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, अपना मेरा बच्चा भी कर लेगा, सो बिलीव इन योर चाइल्ड एंड योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग, नॉट इन होम स्कूलिंग बट इन एवरीथिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने पहले ही बता दिया कि गेटिंग रेडी फॉर होम स्कूल, आप अपने बच्चे से पहले से ही बताने लग जाओगे, ओके फ्रॉम दिस डे मी एंड यू आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। उसके लिए आप अपनी सोशल स्टोरी स्टार्ट कर दोगे, आप कैलेंडर पर मार्क कर दोगे। उससे पहले आप अगर दो घंटे की सोच रहे हो, तो आप पहले ही आधा घंटा बैठना शुरू कर दोगे रोज। स्टार्ट बिल्डिंग विद योर चाइल्ड, बॉन्डिंग विद योर चाइल्ड इफ यू आर नॉट ऑलरेडी डूइंग इट। अगर आपकी बॉन्डिंग अभी नहीं बनी है अपने बच्चे के साथ, वो नहीं बैठता है, तो वही जैसे मैंने बताया 10 मिनट 15 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए एंड ग्रेजुअली स्टार्ट इंक्रीज द टाइम। स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर चाइल्ड, आपको गोल्स बनाने के लिए अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर आप होम स्कूलिंग करने की सोच रहे हो, तो आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, सो दैट आपके गोल्स क्लियर हो जाए कि मुझे क्या काम करना है अपने बच्चे के साथ। स्टार्ट वर्किंग विद योर चाइल्ड फॉर सम टाइम इन अ डे। फिक्स कर लीजिए कि अच्छा मैं 1 महीने के बाद से होम स्कूलिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, कल से हम 10-15 मिनट का 15 मिनट 6 to 6:15 PM रोज काम करेंगे, एंड आप अपने बच्चे को भी बताते जाएंगे। वो सब चलता रहेगा, रोज रोज वो साइकिल चलती रहेगी, और ऑब्जर्व भी करते रहोगे। मेरे बच्चे को ब्रशिंग करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ये मेरा गोल रहेगा होम स्कूलिंग का। मेरे बच्चे को जैसे कि हमारे साथ क्या था, हमारा एक बच्चा जो था वो थोड़ा लिम्प करके चलता था, तो हम उसे बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है, जबकि ऐसी कोई पैर में प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा गोल रहेगा कि हमें इसकी लेग वाली जो प्रॉब्लम है इस पे जरूर काम करना है। तो उसके हिसाब से हमने सोचा, हमने अपने ओटी से बात की, उनसे एक्सरसाइजेस लिखवाई, हमने वो प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया, और हमारे योगा, ओटी वाली प्लान और फिजिकल एक्सरसाइज से 3 मंथ्स में उसकी लेग्स में जो शायद उसका कुछ खिंचाव या कुछ था, वो उसका
ठीक बेटर हो गया। तो इस तरह से जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमें छोटे छोटे गोल्स दिखाई देंगे। ऐसे मेरे बेटे के साथ था कि वो जरा सी साउंड पे शाउटिंग स्टार्ट हो जाती थी उसकी, वो उसको ऑडिटरी इश्यूज थे। तो हमने जो प्लान बनाया उसमें हमने कहा कि हम इसकी साउंड वाली जो सेंसिटिविटी है इस पर काम करेंगे। हमने ओटी हेल्प लिया, हेल्प लेनी होती है कभी, ऐसा नहीं है कि बिना हेल्प के सब कुछ हो जाता है। जहां हमें नहीं आता वो तो हमें पूछना ही है किसी ना किसी से। हमने वो प्लान बनाया, रोज हमने वो किया, क्योंकि पेरेंट इज मोर कंसिस्टेंट, पेरेंट इज मोर पेशेंट देन एनीबडी एल्स। रोज किया, पेशेंटली किया, तो वो इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व होने शुरू हुए। तो ऑब्जर्व करोगे तो आपको भी गोल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। होम स्कूलिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बैकबोन्स क्या होती है होम स्कूलिंग में, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम अगर नहीं है तो हम बनाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग, review plans, consistency, passion, belief and willingness, and an empowered parent are the backbones of homeschooling. तो ये होमस्कूलिंग की बैकबोन्स हैं जो कि हमें अपने दिमाग में रखकर चलनी है अगर हम सोचते हैं कि हाँ हम होमस्कूल करने वाले हैं। तो ये सब हमें, मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि सपोर्ट सिस्टम, टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एम्पावर्ड पेरेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो है इसके ऊपर पूरा होम स्कूलिंग जब हम करते हैं तो सक्सेस आता है। पेशेंस, कंसिस्टेंसी के साथ, पैशन और बिलीफ के साथ, विलिंगनेस के साथ जब हम काम करते हैं तो सक्सेस मिलता है। तो ये बैकबोन्स हमेशा हम याद रखेंगे। तो इसी के साथ जो होम स्कूलिंग के जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। तो अब हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, होम स्कूलिंग प्रोग्राम, जो 2023-24, दिस इज द सेकंड टाइम सोनाली मैम, राइट? third time we are doing this program. So this is the third time we are doing this program, homeschooling program 2023-24, and होमस्कूलिंग के बारे में अब हमने देख लिया। अब सनराइज लर्निंग आपको कैसे होमस्कूलिंग प्रोग्राम में सपोर्ट दे सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड सोनाली मैम विल टेक। थैंक यू वंदना मैम, मजा तो बहुत आया होगा ये सुन के। भावना महेश्वरी, आई कैन सी यू, सो आई एम टेकिंग योर नेम। मजा आया है सुन के होम स्कूलिंग के बारे में? यस मैम, अच्छा लग क्योंकि रहा है? मुझे हाँ वंदना मैम से इंस्पिरेशन मिली। मैं बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा मैं होम स्कूलिंग का प्लान वाइज करूंगी। मैं करती थी राघव का 10 से 1.5 खुद से ही करती हूँ, क्योंकि मैं कासगंज में रहती हूँ, मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं हिम्मत करके आप लोगों का ज्वाइन ही कर लेती हूँ। वेरी नाइस, वेरी मुझे देखते एक मिनट सोनाली मैम, हाँ 1 मिनट, अब ये एक मिनट और लूंगी मैं, सॉरी बीच में बोलने के लिए। जो ये जैसे इन्होंने बोला ना कासगंज, तो ये होम स्कूलिंग का प्रोग्राम जब हमने शुरू किया तो हमारा जो वो था मोटिव कि यही था, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर थेरेपी सपोर्ट और ये सब मिलना बहुत मुश्किल है। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो हमने सोचा कि हमने बोला कि जब हम कर सकते हैं तो दूसरे पेरेंट भी कर सकते हैं ना। तो लेकिन शायद उनको ये पता नहीं होगा कि वो कर सकते हैं, इसलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए थे होम स्कूलिंग का कि कोई हमने तो कर लिया, कोई और अगर करना चाहता है तो उन्हें भी तो पता हो कि हाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो उनके लिए थोड़ा सा ये हमारी कंट्रीब्यूशन होगी अगर हम कुछ कर पाएंगे तो। यस, थैंक यू वंदना मैम, बहुत क्लैरिटी से आपने लेके आए कि घर के अंदर अगर हम स्कूल चला रहे हैं अपने बच्चे के साथ तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर अटकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ना है, एंड सो ऑन। सो सबको याद होगा कोविड का जब वो 2.5 साल आया था, उस टाइम पर सभी ने किसी ना किसी फॉर्म में होम स्कूल किया है। सिमिलरली जब बच्चे छोटे थे और जब समझ नहीं आ रहा था स्कूल एडमिशन कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, somebody is writing and scribbling on this, बहुत सुंदर आर्ट वर्क आपका, बहुत अच्छा लग रहा है।
लेकिन हम थोड़ा कंट्रोल करके कहीं और कर सकते हैं वो आर्ट वर्क, बिकॉज ये हमारी प्रेजेंटेशन है। थैंक यू सो मच। सो उस टाइम पर जब स्कूल में आपके बच्चे को वो सूटेबल प्रोग्राम नहीं मिलता जो उसके लिए बेस्ट है, तब कहीं ना कहीं सभी को सब एक जरूरत महसूस होती है कि काश मैं अपने बच्चे को एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड तरीके से होम स्कूलिंग करा पाती, जो कि कोविड में बहुत सारे पेरेंट्स ने कराया। बहुत सारे पेरेंट्स के लिए कोविड केम एज अ ब्लेसिंग। उनको ये रियलाइज हुआ कि वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, इवन दो शुरू में कितना भी डर लगा, but then later gradually after a few months they did realize the potential of their relationship with their child. On the other hand कुछ बच्चे और कुछ पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था और उनकी डिफिकल्टीज बढ़ गई थी। नॉनदलेस हमें ये याद रखना पड़ेगा, चाहे हमारा बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में जाता हो, वो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन करने कहीं जाता हो, वो किसी स्पेशल स्कूल में जाता हो, ultimately every parent has to be prepared to have a small or a full-fledged homeschooling program. इतना हर पेरेंट को आना ही चाहिए, और ये सोच के ही हम ये होम स्कूलिंग प्रोग्राम और इसके वेबिनार्स बार बार करते हैं। नाउ ऑन दैट नोट मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि हमारे 5 बैचेस ऑफ होम स्कूलिंग पास आउट हो चुके हैं, लेकिन कोविड वाले टाइम को हम होम स्कूलिंग ना मान के ऑनलाइन स्कूल प्रोग्राम मानते हैं। जितने भी पेरेंट्स उस टाइम हमारे साथ एनरोल थे, हम उसको होम स्कूलिंग का बैच नहीं गिनते, क्योंकि वो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस में ही ज्वाइन कर लिए थे। सो देन वी डोंट काउंट दोज बैचेस। बट यस, अब हमें थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है एज प्रोफेशनल्स फॉर डूइंग द होम स्कूलिंग प्रोग्राम। लेकिन एज अ पेरेंट भी ये जो इतना प्यारा सा हमारा स्पेशल स्कूल है सनराइज लर्निंग, वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ ही एक होम स्कूलिंग, एक मिनी होम स्कूलिंग के बेसिस पे ही वो स्टार्ट हुआ था। एक माँ जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा बच्चा 3.5 साल का था, 4 साल का था, उसको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। टोटल 17 स्कूल जब हो गए दिल्ली और एनसीआर में, जब मेरे बेटे को कहीं पे भी किसी भी स्कूल में या तो उसका एडमिशन नहीं हुआ या वो एडजस्ट नहीं कर पाया, जब 17 स्कूल हो गए तो 18वें स्कूल से पहले मेरे माइंड में आया, इतने सारे सवाल आए कि क्या मेरा बच्चा कभी स्कूल नहीं जाएगा, क्या सुबह उठ के जल्दी नहा धो के यूनिफॉर्म पहन के बस में बैठ के या कैब में बैठ के वो एक्साइटमेंट, वो टिफिन लेके और वाटर बॉटल और बैग लेके वो स्कूल नहीं जाएगा कभी भी? क्या उसको कभी ऐसा सोशल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जहाँ रिसेस होती है, असेंबली होती है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में सब खेलने जाते हैं और बहुत सारी पिकनिक पे जाते हैं, बस में बैठ के चिप्स खाते हैं, गाना गाते हैं? क्या उसको वो कभी वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा? सो कीपिंग दोज थॉट्स इन माइंड, आई डिड हैव अ विजन कि मुझे अब कुछ ऐसा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बट वो हो तभी पाया जब मेरे पास 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस था ऑफ homeschooling him in every possible aspect of his development with the help of some therapeutic intervention here and there. So on that note, I just want to say कि हर पेरेंट के अंदर वो पोटेंशियल है। हर पेरेंट और हर बच्चे की रिलेशनशिप में कभी ना कभी वो स्टेज जरूर आती है जब उनको होम स्कूलिंग की जरूरत पड़ती है या उसका पोटेंशियल उनको समझने का मुकाम आ जाता है, उस स्टेज आ जाती है कि अभी इस टाइम पर हमें होम स्कूलिंग करना होगा, शायद हमारे पास और कोई रास्ता ना हो या यही बेस्ट सूटेबल ऑप्शन हो फॉर दिस टाइम फॉर माय चाइल्ड। सो लाइक आई मेंशन, सनराइज लर्निंग एक छोटे से होम स्कूलिंग प्रोग्राम को धीरे धीरे बड़ा करते करते, एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ काम करते करते फाइनली 2014 में Sunrise Learning was started, but the seed was the homeschooling that we were doing. So, अब ये जो प्रोग्राम हम आपके लिए ऑफर करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे वंदना मैम ने बताया, होम स्कूलिंग एक बहुत ही इंटाइसिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन लेके आता है आपके और आपके बच्चे के लिए एक स्कूल प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज स्कूल प्रोग्राम ऑफर करने का। किसी भी स्कूल में जाओगे वहां बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा यार ये तो मेरे बच्चे के लिए मोस्ट सूटेबल नहीं है,
किसी भी दुनिया के किसी भी स्कूल में आप जाओगे, आपको लगेगा मेरा बच्चा ये करता है लेकिन ये तो ऑफर ही नहीं करते, ये तो ये कराते ही नहीं, वहां पर तो एथलेटिक्स ही नहीं है, वहां पर तो रोलर स्केटिंग ही नहीं है, वहां पर तो कोई भी कुछ ना कुछ जरूर होगा जो एग्जैक्टली इन अलाइनमेंट नहीं होगा विद योर गोल्स एंड योर प्लान्स फॉर योर चाइल्ड. सो देन यू वांट कि मैं जब होम स्कूल करूं, जब मेरा होम स्कूल शुरू हो मेरे बच्चे के लिए, वो उसके लिए परफेक्टली टेलर मेड हो, वो उसके लिए परफेक्टली कस्टमाइज हो, वो उसके लिए इतने अच्छे से इंडिविजुअलाइज हो जाए कि उसकी सारी स्पेशल नीड्स फुलफिल हो पाए. राइट? ये तो हम चाहेंगे. और इसलिए वी वांट दैट व्हेन अ पेरेंट इज homeschooling their child, they have to have a thorough understanding of the entire curriculum that is involved. तो हम एक 6 महीने का होम स्कूलिंग प्रोग्राम आपके लिए ऑफर करते हैं, जिसमें आप अपने घर पे रहकर अपने बच्चे के साथ काम करेंगे. उसका जो गाइडेंस है, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसका जो करिकुलम है, वो आपको सनराइज लर्निंग देगा. जब आप इस होम स्कूलिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो तो आपको कुछ चीजें वंस अ वीक मिलती हैं ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ चीजें वंस अ मंथ मिलती हैं ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. हर चीज आपको गाइडिंग फ्रेमवर्क देने के लिए है. हर चीज आपको एक स्टेप बाय स्टेप करिकुलम के थ्रू अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए बनाई गई है. इट इज नॉट स्कूल. अल्टीमेटली जो काम करेंगे वो आप ही होंगे. आपको एक करिकुलम मिलेगा तो आपको ये पता होगा कि ठीक है, ये चीजें ये सीख रहा है तो अब इससे आगे कहाँ जाना है, इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा. अच्छा, अगर मुझे आर्ट भी सिखानी है, मुझे स्केचिंग भी सिखानी है, मुझे शुरू ही करना है कि डॉट्स को ज्वाइन कर करके लाइन बनानी है, लाइन बना के शेप्स बनानी है, शेप्स बना के छोटी छोटी ड्राइंग करनी है, सो दैट उसके एक्सप्रेशन, उसका कम्युनिकेशन में उसको हेल्प मिले, तो भी उसके लिए स्टेप बाय स्टेप ही जाना है. अगर मुझे दुनिया की कोई भी एडीएल स्किल सिखानी है, कपड़े फोल्ड करना ही सिखाना है, कोई भी लाइफ स्किल सिखानी है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. और उसके लिए क्या टूल्स यूज कर सकते हैं जिससे वो जल्दी सीख पाए, अच्छे से सीख पाए, इंटरेस्ट के साथ, खुशी के साथ सीख पाए और आपके साथ सीख पाए, वो आपको एम्पावर करने के लिए बहुत हेल्प करेगा. सो जितना भी यहाँ पर करिकुलम मिलेगा आपको, वंस अ वीक एक ट्यूटोरियल मिलेगा. हर सैटरडे को आपको देखोगे 1 से 1.5 घंटे का ट्यूटोरियल होता है, वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा पूरे 6 महीने तक. वंस अ वीक आपके बच्चे को एक लाइव क्लास मिलेगी जिसमें या तो कोई लाइफ स्किल होगी या फिर कोई फन एलिमेंट होगा जिसमें आप और आपका बच्चा दोनों पार्टिसिपेट करोगे. वंस अ वीक एक आर्ट क्लास मिलेगी. वंस अ वीक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा. वो कॉन्सेप्ट से आप आगे 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 चलोगे इन ऑल द एरियाज. सो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट की तरह होगा जिसमें आपको उसको आगे लेके जाना है, चाहे वो फंक्शनल रीडिंग हो, फंक्शनल राइटिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, या मैथमेटिक्स में भी फंक्शनल मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि इस वीक का ये कॉन्सेप्ट है, इससे हम आगे आगे चलेंगे. वो हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सीखेंगे या हम खेल खेल में सीखेंगे मूवमेंट के थ्रू, या हम लिख लिख के सीखेंगे, वो बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है. ऐसे ही वंस अ मंथ आपको एक सोशल करिकुलम के लिए पीडीएफ मिलेगा या ट्यूटोरियल या वीडियो. वंस अ मंथ आपका एक 1:1 लाइव सेशन होगा एक स्पेशल एजुकेटर के साथ, जिसमें आपके बच्चे के साथ आप अपना आईईपी बनाओगे, आप अपने बच्चे का इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाओगे, होम प्रोग्राम बनाओगे उस एजुकेटर के साथ बैठ के. वो 45 मिनट्स का सेशन होगा और आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करके अपने बच्चे के लिए प्लान बनाओगे, अपने बच्चे की नीड्स, अपने बच्चे के इंटरेस्ट, अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम बनाओगे. उसके बेसिस पे अपना सारा होम प्रोग्राम आगे रन करोगे. हर महीने आप ये करोगे और आगे आगे चलोगे. सिमिलरली हर महीने आप एक 1:1 सिटिंग करोगे विद अ काउंसलर, जिसमें आप अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, अपने बच्चे के साथ आपकी रिलेशनशिप, अपनी फैमिली के साथ आपकी डायनामिक्स, कोई भी चीज आप डिस्कस करके उसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर सकते हो. So that will be one sitting with the counselor. एक one-on-one एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो हर महीने होगा, जिसमें आप अपनी स्ट्रगल्स, अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेरीज. मैंने होम स्कूलिंग शुरू तो कर दी लेकिन मुझे ये स्ट्रगल आ रही है. मैंने एकेडमिक्स कराना शुरू तो किया है लेकिन मेरा तो गाड़ी यहीं पे अटक गई. मैंने लाइफ स्किल सिखानी शुरू की लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूं. मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ.
वो अपनी स्ट्रगल्स आप डिस्कस करोगे एक Q&A में, जिसमें होम स्कूलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी, और हर महीने एक और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो कि स्किल स्पेसिफिक होगा। किसी महीने वो OT या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, किसी महीने सिर्फ स्पीच से रिलेटेड होंगे, किसी महीने लैंग्वेज से और कम्युनिकेशन से होंगे, एक महीने में एकेडमिक्स डिस्कस होगा, फिर ADLs होगा, कंप्यूटर स्किल्स होगा, बिहेवियर होगा, और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे उनसे आपकी क्वेरीज सॉल्व होती चली जाएंगी, अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिटी सपोर्ट जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे तो होगा ही होगा। ये जो 6 मंथ्स का मिनी होम स्कूलिंग प्रोग्राम है, इसको हमने फर्स्ट से लेके 6 मंथ्स तक का एक रोड मैप बनाया है, जिसमें फर्स्ट मंथ में जितने भी टॉपिक्स होंगे ट्यूटोरियल्स के पेरेंट्स के लिए, उसमें दे विल बी बेस्ड ऑन हाउ यू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, एंड उसके लिए क्या क्या होलिस्टिक अप्रोचेस काम करेंगी so that you and your child can work together. सेकेंड मंथ में आप अपनी होम स्कूलिंग को वार्म अप कर लोगे, उसकी प्लानिंग कर चुके होगे, आपको पता होगा कि मुझे क्या स्ट्रक्चर्स डालने हैं घर में, क्या विजुअल्स डालने हैं, क्या मटेरियल अरेंज करना है, और आगे का रोड मैप आपको दिखने लगेगा। थर्ड मंथ में आपका काम शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका पहला IEP पूरी तरह से फंक्शनल, तीसरा IEP होगा वैसे, लेकिन वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाना चाहिए। आपकी सेंसरी डाइट रेडी हो जानी चाहिए, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कैसे काम करना है, और जहां जहां सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए आपको काम करना है वो वाले काम आप कर पाओगे, क्योंकि आपको ये ट्यूटोरियल्स मिलेंगे और इनके साथ आपका डिस्कशन हो चुका होगा। फोर्थ मंथ में आप स्किल ट्रेनिंग शुरू कर दोगे अपने बच्चे की, चाहे वो लाइफ स्किल्स हो, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग हो, कंप्यूटर स्किल्स हो, प्री एकेडमिक्स हो, जितनी भी फाउंडेशन स्किल्स हैं कि बैठना है, बात माननी है, सोशल रूल्स समझने हैं, वो सारी स्किल्स पे काम हो जाएगा। फिफ्थ मंथ में आप कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स पे काम करना शुरू कर दोगे, सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स इनकलकेट करना शुरू हो जाएंगे और कम्युनिकेशन पे काम हो जाएगा। और 6 मंथ में सेल्फ रेगुलेशन, आपको ये समझ में आएगा कि मैं अपने बच्चे के इमोशनल रेगुलेशन के लिए क्या करूं, उसके स्पेसिफिक चैलेंजेस से कैसे डील करूं, जैसे कि कोई सोता नहीं है, किसी की एडोलेसेंस और ग्रोइंग अप वाले डिफिकल्टीज आ रही हैं, किसी को स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज्यादा है, किसी को अग्रेशन वाले एपिसोड्स और डिफिकल्टीज आती हैं, तो वो स्पेसिफिक चैलेंजेस के साथ काम करने के लिए बाय द टाइम यूर इन 6 मंथ आपकी वो सारी क्वेरीज भी रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी, आपको एक रोड मैप दिखने लगेगा, and by 6 months your homeschooling this 6 months program will be over, and then it's up to you, आप मार्च में इसको रिव्यू करके खुद से एनालाइज करके कि हम कहाँ पहुंचे, हमने कहाँ से शुरू किया था और हम कहाँ पहुंचे, and do we want to take another leap into another homeschooling program. So अप्रैल से हमारा फिर से homeschooling program नया शुरू हो जाएगा, so that time will be a good time for you to revise it, review it. जो सवाल आपके मन में होगा उसका आंसर ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। तो होम स्कूलिंग प्रोग्राम की जो फीस है वो 3,000 रुपए पर मंथ है, 3,000 रुपीज पर मंथ, जिसमें जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई वो सब आपको मिलती हैं, जिसमें जो मेन क्रक्स है होम स्कूलिंग प्रोग्राम का वो ये है कि आपकी एक 1-on-1 सिटिंग होती है विद स्पेशल एजुकेटर, जो कि आपके साथ होम प्रोग्राम बनाते हैं और आपके बच्चे का IEP डिजाइन करते हैं आपके साथ मिलकर, ठीक है। इसी तरह एक कंसल्टेशन होती है आपके साथ, जिसमें आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस, अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स, अपने फैमिली डायनामिक्स, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे काम कर सकते हो ड्यूरिंग दैट सेशन। एक ट्रेनिंग ट्यूटोरियल मिलता है हर हफ्ते रोड मैप के अकॉर्डिंग, तो आप आगे आगे चलते हो। आपके बच्चे को एक लाइफ स्किल की क्लास मिलती है हर वीक, every week the child gets 1 class, एक आर्ट क्लास मिलती है हर वीक, एक कॉन्सेप्ट मिलता है हर वीक, और एक Q&A सेशन मिलता है एवरी मंथ, जिसमें आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फेयर इनफ। नाउ अगर आपको लगता है कि हाँ ये बेसिक तो बहुत अच्छी बात है, मेरा होम स्कूल इससे काफी मुझे गाइडेंस मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रॉपर एकेडमिक सपोर्ट भी चाहिए, सपोज आपको लगता है कि मुझे क्या कराना है, वो कॉन्सेप्ट तो मिल गया पर कैसे कराना है उस कॉन्सेप्ट को, मुझे उसमें भी हेल्प चाहिए, मुझे एकेडमिक करिकुलम भी चाहिए, एकेडमिक फ्रेमवर्क भी चाहिए,
तो वो भी है at an additional cost of ₹1000 per month, which means अगर आपको लगता है कि आपको level 1 का curriculum करना है which is pre nursery, या level 2 का करना है which is nursery, या level 3 का करना है which is kindergarten KG का, so for all the 3 subjects English, EVS and Maths, ये तीनों subjects साथ साथ चलेंगे. So there will be an additional cost of ₹1000 per month, जिसके साथ आपको ये academic framework, academic curriculum साथ साथ में आपको ये सपोर्ट मिलेगा ऑन अ वीक टू वीक बेसिस. सो अगर मंडे को मैथ्स होता है, वेडनेसडे को इंग्लिश होता है और फ्राइडे को ईवीएस होता है, तो वो आगे आगे ऐसे करिकुलम चलता रहेगा. ठीक है. नाउ अगर आपका बच्चा है एनआईओएस के लेवल पे, ओबीई ओपन बेसिक एजुकेशन के लेवल पे है, सपोज वो ए बी सी की क्लासेस करता है या करने वाला है, या आप उस लेवल पे आ गए हो जब आपको लगता है कि मुझे उसके साथ साथ उसको ओपन स्कूलिंग में भी एनरोल करना है और अब मुझे वो क्लासेस भी करनी है. सो इनकी जो क्लास होती हैं वो शाम को होती हैं ऑनलाइन, और हर रोज एक क्लास होती है, विच मीन्स 4 क्लासेस अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऑन एन एवरेज इस तरह से क्लास होती हैं फॉर ए बी सी. there is a class of English, there is a class of EVS, there is a class of Maths, there is a class of Computer. जो 4 मेन क्लासेस होती हैं वो 4 डेज में होती हैं, वीकडेज. सो ये क्लास हर रोज कोई ना कोई क्लास होगी, मतलब 7 दिन में से 4 दिन ये क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास होगी, जो आप अटेंड करोगे अपने बच्चे के लेवल के हिसाब से. और अगर वो सेकेंडरी में है, विच मीन्स अगर 10th का एग्जाम देने वाले हैं, तो ₹1000 पर सब्जेक्ट होगा. और जो सब्जेक्ट्स हम अभी करंटली सनराइज लर्निंग में ऑफर करते हैं वो है डेटा एंट्री, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस और बिजनेस स्टडीज. इसमें से सपोज 1 या 2 या 3 या 4 या 5 सब्जेक्ट आप लेते हो, तो आपको पर सब्जेक्ट यू पे दिस फीस एंड यू स्टार्ट योर ओपन स्कूलिंग थ्रू दिस academic सपोर्ट, जो कि होम स्कूलिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा है. ओपन स्कूलिंग इज अ पार्ट ऑफ होम स्कूलिंग if you understand this OBE or the secondary level classes. ठीक है. Now for this webinar, for the participants who are a part of this webinar, who are attending this webinar, the Sunrise Learning team wants to offer something special. और वो special क्या है? Independence Day के what do you call it, अवसर पर जो होम स्कूलिंग प्रोग्राम ₹3000 पर मंथ का है, वो हम ₹2500 पर मंथ पे देना चाहते हैं. बट अ डिस्क्लेमर हियर, होम स्कूलिंग एक चॉइस है जो आप बनाओगे अपने बच्चे की नीड्स और अपनी फैमिली के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फी स्ट्रक्चर और अ डिस्काउंट. जस्ट बिकॉज यहाँ पर डिस्काउंट है इसलिए चलो होम स्कूलिंग कर लेते हैं, इज नॉट what we are trying to say. We are trying to say that आप एक informed choice बनाइए. अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे होम स्कूलिंग से बहुत हेल्प मिलेगी, मेरा बच्चा सबसे अच्छा मेरे साथ काम करता है और मैं इस इतने अच्छे कनेक्ट को ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगी, मैं इस कनेक्शन का बहुत अच्छा भरपूर फायदा उठा के अपने बच्चे का पोटेंशियल रियलाइज करा सकती हूँ, तो देन प्लीज गो अहेड. This is a priceless program. इसकी कोई कीमत नहीं है. We are not selling it here. It is not a commodity जो कोई खरीद ले. अपने बच्चे की achievements, अपने बच्चे की progress दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता. This is the fees, a nominal fees that is charged for the guidance and the framework that is given to you. So please make an informed choice. So homeschooling program अगर आप लेते हो तो अभी आपको ₹2500 पर मंथ की फीस पड़ती है, जो कि आप 3 महीने के एक साथ फीस देते हो. यू रजिस्टर फ्रॉम द एडमिन गर्ल. साथ में क्योंकि आप होम स्कूलिंग कर रहे हो, वी रियली वांट, हम दिल से चाहते हैं कि हर पेरेंट ये बात को समझ पाए कि अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स दैट वी आर सीइंग आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है बच्चा. तो हम हर पेरेंट के लिए चाहते हैं कि वो कम्युनिकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज का हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है CSL. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज. इसमें 8 ट्यूटोरियल्स आते हैं, 8 ट्यूटोरियल्स जो कि 1-1 घंटे के ट्यूटोरियल्स होते हैं. अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे का ये कोर्स है, जो कि नॉर्मली 1 हफ्ते में 1 ट्यूटोरियल मिलता है जब कोई पेरेंट कोर्स में रजिस्टर करता है, और वो देखते हैं, फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं और यूज करते हैं उसको.
तो ये कम्युनिकेशन स्पीच एंड लैंग्वेज का जो कोर्स है विच इज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2200 ऑन एडमिंगल, ये हम अपने हर होम स्कूलिंग पार्टिसिपेंट को देना चाहते हैं सो दैट दे फर्स्ट लर्न एंड अंडरस्टैंड कि मुझे कम्युनिकेशन पे कैसे काम करना है. So this is a course that will be given to you along with the basic homeschooling program if you enroll right now or before 15th of August on Independence Day. If you enroll anytime, this is the cost as a special offer that is being given to you. अब आप enroll कैसे कर सकते हो? ये एक link है which when you click, अभी आपको ये link chat box में share होगा और वंदना मैम just share this link in the chat box और जैसे ही ये link आपको share होगा, जब आप click करते हो तो you reach this page on Edmingle. ये Edmingle का वो पेज है जो आपको होम स्कूलिंग प्रोग्राम पे लेके जाएगा and then you pay for the first 3 months of the course, the first half of this course of this program, first 3 months की आपसे ये फीस लेगा. 15th August तक the fees is this for 3 months, right? Now अभी भी अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डिसीजन लेने में हेल्प चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी, अगर मैं होम स्कूलिंग कराती हूँ तो मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भी इस तरह की क्वेरी जो आपको अभी सपोज अभी नहीं आती है, थोड़ी देर में आती है, बाद में रात को कोई सवाल आता